Hi everyone, how are you all? I am Abhinandan Dutta, and today I am going to discuss about the concepts of management. So before we discuss about the concepts of management, I would like to say that I already uploaded 3 videos of accounts. So if you haven't seen those videos, then please watch those videos. I will give the link of the videos in the description box. And if you are new to my channel, then please subscribe, like and share my channel. So let's start the class. So generally concepts of management is classified into two parts. One is traditional concept and another is one modern concept. So traditional concept of management says that it is the art of getting things done through others. Means management is not an individual task, it is a group task. We can never complete a task alone. We have to complete a task together. It means unity is strength. Without others help or without group activity, we can't achieve our common goal or common objective. So that's why it is traditional concept says that it is the art of getting things done through others. सो एक फेमस बॉलीवुड सॉन्ग है, आप लोगों ने सुना होगा, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट मैनेजमेंट. सो मैनेजमेंट can't be a individual task, so it is a what group activity, group task. Now modern concept of management is defined as the process to get the things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. So modern management concept says that the work is getting done through others, but with effectively and efficiently. हम लोगों को काम effectively और efficiently करना पड़ेगा. Effectively means achieve the task और completion of task on time. Effectively means हम लोगों को जो task दिया है, जो हम लोग का जो objectives है, वो objective हमको on time हमको complete करना पड़ेगा. और efficiently means what? Minimum cost and minimum resource. Minimum cost and minimum resource से ही हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो टास्क है हमको कंप्लीट करना पड़ेगा. सो दिस इज कॉल्ड वन मॉडर्न कंसेप्ट. सो मॉडर्न कंसेप्ट सेज दैट वी हैव टू वर्क टुगेदर बट विथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. सो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम लोगों को काम करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, तभी एक बिजनेस का जो गोल है तभी अचीव कर पाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अदर्स. So famous definition, management is the art of getting things done to others, was given by Mary Parker Follett. Follett describes management as an art of directing the activities of other persons for reaching enterprises goals. It also suggests that a manager carries only a directing function. So generally management can be defined as a process of planning, organizing, staffing, directing and controlling such that the goals of the organization are achieved successfully with minimum costs and resources. So management क्या है? So management is एक process है. So first हम plan करेंगे, then organize करेंगे, then staffing means human resource. हमको staff हमको रखना पड़ेगा, recruit करेंगे. Staff then directing, उसको हम direction देंगे, जे हम लोग का objectives क्या है, हम लोग का task क्या है, हम लोग का काम क्या है, हम जो हमने रिक्रूट किया है उसको हम डायरेक्ट करेंगे. एंड नेक्स्ट क्या है, कंट्रोलिंग मीन्स व्हाट, कंपैरिजन बिटवीन planned performance and actual performance. Comparison between planned performance and actual performance is the main concept of controlling. So these are the main functions of management. So such that the goals of the organization are achieved successfully with minimum cost and रिसोर्सेज. मिनिमम कॉस्ट एंड मिनिमम रिसोर्सेज अगर हम लोग का काम हो जाता है तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, मैनेजमेंट. नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. सो इफ देयर इज नो गोल, सो देन देयर इज नो मैनेजमेंट. अगर गोल ही नहीं है तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, मैनेजमेंट भी नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या है, सो फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्लास 12
का एग्ज़ाम देंगे अगले साल। सो आप फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि मुझको बिजनेस स्टडीज़ में 80 मार्क्स लाना है। सो जो आपको जो गोल है, जो गोल क्या है, आपको फाइनल एग्ज़ाम में आपको बिजनेस स्टडीज़ में क्या लाना है, 80 मार्क्स लाना है। सो क्या करेंगे आप? सो अभी से क्या होगा, आप प्रिपरेशन करेंगे, कहाँ से नोट्स लाएंगे, कैसे हम आपको डाउट्स कहाँ से आपको क्लियर होगा, टीचर से लेंगे या ऐसे यूट्यूब में वीडियोस आप देख के आपका डाउट्स क्लियर करेंगे। सो आपका जो प्लानिंग जो है, आप अभी से क्या होगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। सो ये आपका गोल क्या है, आपको 80% 80 मार्क्स लाना है बिजनेस स्टडीज़ में। सो ये आपका गोल है। सो उस गोल के हिसाब से आपको क्या होगा, मैनेज करना पड़ेगा आप बाकी सब काम। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड व्हाट, मैनेजमेंट इज ए व्हाट, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। Next one is what? Management is all pervasive. Pervasive means what? Everywhere. It's a common. Management is a common. Management is not done only in the organization. अगर organization में ही मैनेजमेंट होता है ये नहीं है। मैनेजमेंट हर जगह होता है, हर काम में होता है मैनेजमेंट। अगर आप घर के बारे में लेंगे, अगर घर का मैनेजमेंट कौन करेगा, आपका मम्मी और पापा। डेफिनेटली सुबह से लेके शाम तक कौन मैनेज करेगा, आपका घर। सो आपका घर आपका मम्मी या पापा ही मैनेज करेगा। कहाँ से पैसा लाना है, कैसे क्या खाना है, क्या पढ़ना है, आपका अगर आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका ख्याल कौन रखेगा, आपका मम्मी और पापा। सो मम्मी पापा क्या है, घर में क्या होगा, मैनेज करता है। सो नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस में अगर मैनेजमेंट ये नहीं है, आपका घर में ही आपका क्या है, मैनेज होता है। सो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। सो मल्टी डायमेंशनल मीन्स मैनेजमेंट इज इन वर्क, management means people, and management in operational activity. So management is in work means what? Work may be a individual task or group task. So एक मैनेजर कंसिडर करेगा, देखेगा ये फॉर एग्जाम्पल पार्टिकुलर काम, पार्टिकुलर वर्क, पार्टिकुलर टास्क ये इंडिविजुअल टास्क होगा या ग्रुप टास्क। अगर इंडिविजुअल टास्क होगा तो इंडिविजुअल करके क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर ग्रुप है, अगर ये ग्रुप टास्क होगा तो वो ग्रुप एक क्या होगा, एक ऑर्गेनाइज करेगा, एक सेट करेगा। तो ये इस ग्रुप में इतना पर्सन होगा और ये पर्सन क्या करेगा, ये ग्रुप ये जो टास्क है कंप्लीट करेगा। So that's why it's called what? Management is in work. So work may be a individual work or maybe a group activity. Next come management is people. So people means what? Your staff, your human resource. So आपको क्या करना पड़ेगा, human resource जो staff है आपको satisfy करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप satisfy नहीं करोगे, आपका अगर आप उसको सैलरी अगर ठीक से नहीं देंगे, अगर आप उसको प्रमोशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा और मोटिवेटेड होने से क्या होगा, उसका जो काम का जो एफिशिएंसी है तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो दैट्स वाई आपको पीपल जो स्टाफ है, आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड वर्क मैनेजमेंट इज पीपल। सो उसको भी आपको क्या होगा, करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। एंड लास्ट वन इज व्हाट, एक्टिविटी। नाउ ऑपरेशनल एक्टिविटी मीन्स इज इंटर रिलेटेड विथ वर्क एंड पीपल। अगर आपका काम अच्छा है और आपका जो स्टाफ है वो अगर मोटिवेट हो गए, अगर वो अपने खुद से अगर 100% अगर दे, तो क्या होगा, आपका ग्रोथ, आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रोथ होगा, और अगर ग्रोथ होगा तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा, आपका मार्केट में नाम होगा। सो दैट्स वाई वर्क एंड पीपल इज इंटर रिलेटेड विद द एक्टिविटी, ऑपरेशन एक्टिविटी बिजनेस का। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड व्हाट, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज मैनेजमेंट एक ही बार नहीं होगा। मैनेजमेंट इज नॉट ए वन टाइम प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर जगह, हर टाइम, हर सिचुएशन में क्या होगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज इन all time, all activity and all situation. So that's why it is called a management is a what, continuous process. Management is not a fixed process.
Next, management is a group activity. Yes, management is a group activity. It is not an individual task. It is a what? Group task. And last one is what? Management is an intangible force. Intangible means what? The intangible thing is what? We cannot touch, or we cannot feel, or we cannot see. So this is called intangible. So that's why management, we cannot feel, or we cannot touch, we cannot see the management. But we can say that if the organization is doing well, then we can say that those organization management is good. And if the management is showing not working or not good, then we can say that those organization management is not fruitful. So that's why management is an intangible force. So these are the characteristics of management. Next, let's discuss the objectives of management. So there are mainly three objectives: organizational objectives, social objectives, and personal objectives. So what do you mean by organizational objectives? So organizational objectives also can be divided into three parts: survival, profit, and growth. Means survival means what? Earning enough revenues to cover costs. एक organization को survival होना ही पड़ेगा, because in this competition era, in this competitive era, we have to survive in the organization. To survive in the organization, we have to manage well. हमको मैनेज अच्छी तरह करना पड़ेगा, तभी हम मार्केट में सर्वाइवल कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट. येस, डेफिनेटली हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. विदाउट प्रॉफिट द बिजनेस इज मीनिंगलेस. सो हमको प्रॉफिट करना पड़ेगा, बट सर्वाइवल इज मस्ट. विदाउट सर्वाइवल प्रॉफिट कैसे आएगा? अगर हम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सके तो प्रॉफिट कैसे आएगा? सो सर्वाइवल इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन प्रॉफिट आएगा. देन लास्ट में क्या आएगा? ग्रोथ. अगर सर्वाइवल, अगर मार्केट में अगर हमारा नाम होगा ऑर्गेनाइजेशन में, अगर प्रॉफिट हम लोग का ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? हम लोग का डेफिनेटली हम लोग का बिजनेस क्या होगा? ग्रोथ होगा. सो दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स व्हाट? वी हैव टू सर्व द सोसाइटी वेल. हमको सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, बट एनवायरमेंट अभी क्या है? इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरमेंट फ्रेंडली होना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हम लोग कंज्यूमर को हम फ्रॉड नहीं कर सकते. हमको कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट सेटिस्फाई द कस्टमर वी कैन नॉट ग्रो आवर बिजनेस, वी कैन नॉट ग्रो आवर प्रोडक्शन. सो दैट्स वाई सोशल ऑब्जेक्टिव इज़ वेरी मच. हमको सोसाइटी के बारे में ही सोचना पड़ेगा. पहले क्या था इन द ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन? सो उसने क्या, वो पहले क्या था, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन करेगा वही क्या होगा? कंज्यूमर को लेना पड़ेगा. बट अभी ये क्या होगा? डेफिनेशन चेंज हो गया है. अभी कस्टमर के हिसाब से हमको क्या होगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा. सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. यस, दिस इज द व्हाट? सोशल ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव. पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स व्हाट? ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ है उसका जो पर्सनल जो डिजायर है वो हमको क्या होगा? देखना पड़ेगा. मैनेजर को पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के क्या होगा? काम करना पड़ेगा. पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट? पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज टू डाइवर्स द पर्सन ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक मैनेजर को जो स्टाफ उसने रखा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको क्या करना पड़ेगा? मैनेज करना पड़ेगा. जो स्टाफ है, मे बी जो वर्कर है, लेबरर है, और मे बी व्हाट जो अकाउंटेंट है. सो सबके बारे में एक मैनेजर को क्या होगा? सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्टाफ अगर मोटिवेट नहीं होगा तो क्या होगा? हम लोग का काम कभी भी अच्छा नहीं होगा. सो अगर स्टाफ अगर डीमोटिवेट होगा तो क्या होगा? उसका जो काम करने का एफिशिएंसी है वो इफ़ेक्टिवली कभी भी काम नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सो दैट्स वाई वो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के क्या होगा? ज्वाइन करेगा. सो अगर ये किया तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि हमको जो एफिशिएंट वर्कर है, जो इफ़ेक्टिव वर्कर है, हमको क्या होगा? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रखना ही पड़ेगा. तभी क्या होगा?
हम लोग का फ्यूचर में ग्रोथ होगा. सो दैट्स वाई इट इज़ अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव. मीन्स हम लोग का स्टाफ का भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, स्टाफ का सेटिस्फेक्शन लेवल को भी हमको देखना पड़ेगा. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो फर्स्ट इम्पोर्टेंस व्हाट अचीविंग ग्रुप गोल्स. सो हम एक ग्रुप हिसाब से हम ग्रुप एक एक्टिविटी हिसाब से हमको क्या करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा. हम अकेले कभी भी एक मैनेजर अगर ग्रुप कभी भी अचीव नहीं करेगा. सो एक ग्रुप बन के एक ग्रुप एक्टिविटी जो हम लोग का स्टाफ है सब मिलजुल के हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो गोल्स है, जो वो गोल हमको एक साथ मिलके हमको क्या करना पड़ेगा, वो गोल्स अचीव करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट अचीविंग ग्रुप गोल्स. हम ग्रुप होके एकजुट होके हमको क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना पड़ेगा. नेक्स्ट इंक्रीज एफिशिएंसी. सो मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी. अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो डेफिनेटली अगर सब पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू और द पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम सभी के बारे में सोच के अगर मैनेज करेगा तो क्या होगा, डेफिनेटली एफिशिएंसी बढ़ेगा. बिकॉज अगर एफिशिएंसी अगर हम लोग का कम है तो क्या होगा, हम लोग का जो प्लानिंग है, जो हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कभी भी फुलफिल नहीं होगा. सो मैनेजमेंट क्या करेगा, एफिशिएंसी क्या होगा, इंक्रीज करता है. जो हम लोग का जो स्टाफ है, हम लोग का जो वर्कर है, हम ग्रुप बन के विद एफिशिएंसी हम लोग काम करके क्या होगा, अचीव, हम लोग ग्रुप बन के हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन का वो हम अचीव करते हैं. सो मैनेजमेंट इंक्रीज व्हाट, एफिशिएंसी. नेक्स्ट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. यस, मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स फॉर एग्जांपल मार्केट में अगर फॉर एग्जांपल डिप्रेशन चल रहा है तो क्या होगा, हमको ऐसे मैनेज करना पड़ेगा जब हमको और मेहनत करना पड़ेगा, तभी क्या होगा, मार्केट में हम लोग का नाम क्या है, मार्केट में हम लोग का नाम आए. Yes, so this is called what dynamic organization. Management is not a static. Management is what dynamic. हम every change, अब environment, organization change में, organizational behavior में हमको every change में हम लोग को क्या होगा, मैनेज करना पड़ेगा. So we have to cope up with every changes in the organization or in the market changes. We have to cope up with. So that's why management सभी organization सभी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा. सो दैट्स वाई इट्स अ मैनेजमेंट व्हाट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. यस, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स सभी का अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होगा. सो अगर हम स्टाफ का अगर फॉर एग्जांपल अगर वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवली काम करेगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको उस इंडिविजुअल को हम प्रमोट करेंगे. सो प्रमोशन अगर वो फॉर एग्जांपल एक अकाउंटेंट था, अगर हम लोग अगर उसको अकाउंटेंट से अगर हेड अकाउंटेंट या फाइनेंस मैनेजर या अकाउंट्स मैनेजर अगर हम बना देंगे तो क्या होगा, उसको मोटिवेट होगा. सो मोटिवेट होने से क्या होगा, डेफिनेटली एफिशिएंसी और इफेक्टिवली वो काम करेगा. सो दैट्स वाई सम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी क्या होगा, मैनेजमेंट से अचीव होता है. नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. सो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी मीन्स सोसाइटी का डेवलपमेंट में भी क्या होगा, मैनेजमेंट हेल्प करता है. सो अगर हम मैनेजमेंट अगर अच्छा, अगर प्रोडक्शन अच्छा है, यस, अगर कस्टमर अगर सेटिस्फाई हो हमारे प्रोडक्ट्स में से, तो क्या होगा, डेफिनेटली सोसाइटी में हम लोग का क्या होगा, ब्रांड और प्रोडक्ट्स क्या होगा, कस्टमर लेंगे और सोसाइटी में हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, नाम होगा. सो मैनेजमेंट ऑल्सो व्हाट डेवलप्स द सोसाइटी. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड about the concept of management. So if you have still any doubt, then please write it in your comment box. Then I will solve your doubts. So thank you very much.